This is the harsh reality of our country, okay, where people judge other people, like we Indians judge other Indians on the basis of their English language skills, right? And this is going to be today's topic. Like, English is just for the status, it's not for the skill, it's not for the requirement, global requirement. And today I will be talking about English as a status in our country, in our society. Particularly I'm talking about India. So I will be telling like, I will be sharing my experience from my heart. Like, today I've just like sat on my armchair, like put my camera here and just talking about this situation, because I've been thinking about this topic a lot of time, but maybe I didn't muster that courage to tell you and how to portray, how to put across. I really do not know. I do not have any script. Nothing is there. It's just like sharing my experience with you people. Okay. So hello everybody. My name is Dr. Shruti Soni. I'm your corporate communication and English coach, and I have been teaching for the last 15 years, and I've taught across the cities, colleges and universities of India. So whatever I will be teaching you with the help of my videos, I teach with, of course, with the help of my knowledge and experience, because experience is your best teacher. Let me tell you this thing. Okay. So let me tell you one more thing, that currently I'm on this journey where I will be just uploading the videos without any fancy edits, and I really want to make my videos like in one go. I do not want cuts. I do not want any script. Reason being, so that you would see that how the real communication looks like. So if you would see my video, you would never find key, okay, they are so current videos. Okay. Earlier I used to do my edited videos and all that. I will be doing in future as well, but this is my current status. So quickly move to the major topic, that English is considered to be as a status in our society, in our India. That, yes, that is the reason why you people has this fear of judgment. Why you always think that if I'm going to utter a single word in English, the other person is going to mock at me. Why do you feel that way? Because हमें ऐसे लगता है, हम क्योंकि लोग हंसते हैं. The thing is, people laugh. हमारी ही जो लोग, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं, वो हमारी इंग्लिश सुन के हंसते हैं. सबसे बड़ी बात पे प्रॉब्लम ये, अगर हम नेटिव स्पीकर हमें कोई करेक्ट करे या वो हम पे हंसे, तो चलो मैं एक बार मानू कि उनका मन बनता है. बट व्हाई डू वी इंडियंस आर सो फैसिनेटेड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज? व्हाई वी ऑलवेज कंसिडर इंग्लिश लैंग्वेज as the fanciest thing that you could ever own in your life? Why we never consider English as a skill, as a language only? This is the problem, and this is the major problem, कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग जो हैं वो इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. वो बोलना चाहते हैं, फिर भी डर के मारे नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस इतने बुरे होते हैं. लोग उन पे हंसते हैं. मेरे पे भी लोग हंसे, ऐसी बात नहीं है, राइट? एज एन इंग्लिश टीचर ऑल्सो, व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द मेजर सिनेरियोस. एंड टू, और आई वुड ऑल्सो से दैट मेरे संग 1 से 2 केसेस भी हुए व्हेन आई वाज टीचर. ओके, बट आई नो हाउ टू रिप्लाई, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, एंड एनीवे आई ऑलवेज वर्कड ऑन दैट. एंड माय माइंडसेट इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज. मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ स्किल. ओके, इट्स अ ग्लोबल नीड, and we should use it as a tool to communicate, not as a tool to mock at anybody. And हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि जितना अच्छा अंग्रेजी इंसान बोलेगा, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उतना ही ज्यादा एक्सेसिबल होगा, उतना ही ज्यादा समझदार होगा. सब कुछ, जो सारी जो दुनिया में अच्छी क्वालिटीज होती है ना, वो उसी इंसान के अंदर होगी अगर उसको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है. इसलिए आज की डेट में भी, इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ यू आर एनीबडी, यू ऑलवेज रन आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज हाउ द सोसाइटी वर्क्स. इसलिए आप इसलिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि लोग आप पे हंसे नहीं. ज्यादातर इफ यू विल सी द रेशियो, इफ यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, definitely so that I would sound smarter in the conversation, and the second thing, that people will not judge me. Okay, क्योंकि लोग जज करेंगे तो लोग हंसेंगे, आगे हंसेंगे, पीछे हंसेंगे, जैसे भी हंसेंगे, and they will try to mock you, they will try to pull you down, right? And ये एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस ब्रेक का. कहते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है. कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा ब्रेक होता है क्योंकि हम जज करते हैं खुद को, क्योंकि हम अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और हम इसलिए खुद को जज करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हमको जज करेंगे. इसलिए अगर आपने अपने आप को देखा होगा, पैटर्न नोटिस करा होगा, कि हम ज्यादा क्या करते हैं, किसी भी कॉन्वर्सेशन में हम पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते. हम हमेशा चाहते हैं कि ठीक है, सामने वाला बोल रहा है तो बोलने दो. इफ दैट कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन इंग्लिश, ओके, यू ट्राई नॉट टू से एनीथिंग, यू ट्राई योरसेल्फ टू होल्ड, ओके, टू होल्ड योरसेल्फ बैक, सो दैट ठीक है, सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो, राइट? बट एक मैं आप मुझे एक बात बताओ, बाय डूइंग इट, ठीक है ना, देखो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं. आप अगर, अगेन आई एम टेलिंग, वेदर स्टूडेंट और प्रोफेशनल, कभी आप मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन हो रही, ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रही है, तो आप हमेशा उसी इंसान को पुश करते हो आगे जो अच्छा बोल लेता है, इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है, अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, आप हमेशा उस इंसान को पुश करते हो. आप खुद आगे नहीं जाना चाहते हो. क्यों नहीं जाना चाहते हो?
क्योंकि हमें ऐसा डर लगता है कि हम बोलेंगे तो लोग हमको जज करेंगे। उसका भी रीजन मैं भी बताऊंगी, आप क्या कर सकते हो, उसके नुकसान भी क्या है आपको, वो भी आपको बताऊंगी, राइट। सो यू ऑलवेज पुश दैट पर्सन। तो अगर एक बार मुझे बताओ, आप अपनी जगह सबको पुश करते जाओगे लाइफ में, तो सामने वाला ही पुश होगा आगे। ग्रोथ उसी को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, तो आपको फिर रोने का हक नहीं है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, दैट यू कैन नॉट क्राई इफ यू डू नॉट वांट टू मेक एन एफर्ट, right? You need to make an effort, you need to learn this skill, to learn this language, and you need to learn to give reply to those people as well who mock at you when you speak English, who always judge you whenever you speak English, right? So you need to learn this art, because ऐसा करने से पता आप क्या करो, आप अपनी ही ग्रोथ को पीछे करो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप मुझे बताओ आप कैसे आगे बढ़ोगे, हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अगर आप इंग्लिश नहीं जानने के चक्कर में सिर्फ अपने आप को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे लोगों को आगे पुश करते जा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, वो आगे होते जाएंगे और आप पीछे होते जाएंगे। तो आपकी ग्रोथ ही काउंटर करिए, आपकी ग्रोथ पे ही बात आ रही है, तो कभी ये गलती मत करें, बिल्कुल भी मत करें। बट द थिंग इज कि यस, मैं इस बात को मानती हूँ कि लोग हमारे सोसाइटी में क्या होते हैं कि अगर आपने गलत इंग्लिश बोली ना, तो आई विल बिकम विलियम शेक्सपियर। ओ माय गुडनेस, हाउ कुड यू मिसप्रोनाउंस दिस वर्ड, हाउ कुड यू नॉट यूज दिस वर्ड, हाउ कुड यू मेक दिस सिली मिस्टेक। सो मैं एकदम से विलियम शेक्सपियर बन जाती हूँ कि भैया विलियम शेक्सपियर तो मैं हूँ, मेरी खानदान में पैदा हुआ है, उसने मुझे अंग्रेजी सिखाई और मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर इंडियन सोसाइटी, राइट। एंड दिस इज द रीजन हमें तो लगता है कि ये हमारे तो अंग्रेज हमारे ऊपर छोड़ के गए, ओके, बिकॉज ब्रिटिश दे रूल्ड अस, ओके, एंड वो उन्हीं का लैंग्वेज है। और उन्हीं इंग्लिश बोलते वक्त हम बड़े फैंसी साउंड करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक्चुअल में फैंसी बड़ी अच्छी लगती है जब हम बोलते हैं, बट ये एक इतना गंदा टूल बन गया लोगों को जज करने का। और हमारी इंडियन सोसाइटी में जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से ज्वेलरी पहन रखी है, जिस हिसाब से आपने मेकअप करा है, जिस हिसाब से आप अपने आप को मतलब मेंटेन करके चलते हैं, उस हिसाब से लोग आपको जज करते हैं। सेम इज एप्लीकेबल टू इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, कि पीपल ऑलवेज जज यू, राइट, ठीक है ना। वो हमेशा एज अ फैंसी टूल ही समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ सैडेस्ट पार्ट है। बीइंग एन इंग्लिश कोच, दिस इज द सैडेस्ट पार्ट कि भाई, और दिस इज व्हाट, जब लोग मेरे पास आते हैं, जब मेरे लर्नर्स आते हैं, मेरे लर्नर्स मैं कह रही हूँ 98% आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग सो ग्रेट इन देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। व्हेन दे स्ट्रगल विद देयर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी, मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल टूट जाता है, मेरा बिल्कुल दिल टूट जाता है कि यार इतना अच्छा टैलेंटेड बंदा है, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मैं क्या कर दूं उनको, मैं क्या उनको पढ़ा दूं कि बस वो कॉन्फिडेंस आ जाए, जो कि डेफिनेटली आता है अनडाउटेडली, बिकॉज दिस इज हाउ आई टीच, दिस इज how I train. I always work on confidence along with my English language skills. Okay, मेरा teaching pattern हमेशा इस तरीके से होता है कि भाई कॉन्फिडेंस बंदे का बूस्ट अप होना चाहिए। So हम कर क्या सकते हैं, हम करने को तो कुछ भी नहीं कर सकते, पर करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला हमें खुद को सीखना पड़ेगा कि अगर हमारे आसपास कोई इंग्लिश में बात करे, वी आर मेकिंग मिस्टेक, प्लीज डू नॉट पॉइंट इट आउट। उनको पब्लिकली तो पॉइंट आउट बिल्कुल भी मत करो। आप अप्रिशिएट करो पब्लिक में। अगर आपको इस इंसान को फीडबैक देना है, क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज मीन्स अगर आपको फीडबैक देना है, सो प्लीज डू इट प्राइवेटली। आप उनको करेक्शन बताओ जिससे कि वो सही आगे करें, बट उनको सबके सामने हंसो मत, अरे ये तूने तो ये वर्ड मिसप्रोनाउंस कर दिया। इससे इंसान का कॉन्फिडेंस जो टूटता है ना भाई, आपको आइडिया भी नहीं है, वो सालों साल तक टूटा रहता है। उसको बिल्ड करने में जितना टाइम लगता है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, राइट। सो ये हमारी इंडिविजुअल ड्यूटी बनती है एज एन इंडियन कि हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग है, जो अगर गलत इंग्लिश बोलते हैं, कि हम उनको करेक्ट करना चाहते हैं, हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। प्लीज पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट मत कीजिए, पब्लिकली उनकी इंग्लिश मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत बताइए। अगर आप उनको रियली में आपको हेल्प करनी है तो प्लीज उनको प्राइवेटली बताएं कि उन्होंने क्या गलती करी है, वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कभी किसी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी है ड्यूरिंग योर इंग्लिश स्पीकिंग, सो आप में इतनी गट्स होने चाहिए, आप उस इंसान को हाथों हाथ उस चीज का जवाब दो इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर, ओके। आप उनको सिंपल ये वाली बात कहिए। दिस इज व्हाट आई जनरली टेल टू माय स्टूडेंट्स कि कभी कोई उनके हंसे तो उनको क्या बोलना चाहिए कि यू नो व्हाट, इंग्लिश इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज माय सेकंड लैंग्वेज एंड आई एम लर्निंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। सिंपल एज दैट। फुल स्टॉप एंड जस्ट वॉक अवे। रुकना नहीं है वहां पे, बोल के मुड़ जाना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं बोलना, आराम से बोलिए, आप जवाब दीजिए, चुप होके नहीं आएंगे वापस। दैट इज द प्रॉमिस दैट यू नीड टू मेक, ओके। सो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर इंसान को समझाना, उनको बताना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट दिस थिंग फ्रॉम
फ्रॉम आवर सेल्फ, आई वुड से। हम आप अपने आप से एक चीज को स्टार्ट करेंगे, तभी हम रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। हमें खुद को, क्योंकि हम ही जो लोग हैं ना जो एक दूसरे पे हंसते हैं, वो हम ही हैं, हम में से ना वो लोग। तो हमें भी वो चीज स्टार्ट करनी होगी, हमें लोगों को समझाना होगा। वी नीड टू टीच, हमें अवेयरनेस फैलानी होगी कि भाई हमें शेक्सपियर नहीं बनना है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इट्स जस्ट अ सेकंड लैंग्वेज दैट वी आर लर्निंग। आपको क्या लगता है कि क्या सही है क्या गलत है? कभी आपके संग ऐसा हुआ है? आपने किस तरीके से सिचुएशन को डील करा है? या आप कोई किसी को गाइडेंस देना चाहें तो आप किस तरीके से उस इंसान को गाइडेंस दे सकते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।